conditional probability. Next chapters, and you can say it is the chapter number 13. Actually, in 12th class, this topic start from conditional probability. It means the definitions and all these addition of probabilities that are all belongs to class 11th probability syllabus. It means you must know the definition of probabilities and few definitions before going to conditional probability. I will explain orally in between the lectures, but if you want to see the separate definitions, that are in my class 11th videos. The topic is conditional probability. E and F are two events. Events are nothing but they are subset of the sample space S. Events are nothing, they are the subset of. This is the definition of event. Associated with the same sample space same है. Of a random experiment, in probability all experiments are called random experiment. The conditional probability of the event E, जिसकी निकालनी है probability of E, given that F has already occurred. F has already occurred. Because of this sentence, it becomes conditional probability. And is given by probability E oblique F. This is the representation of conditional probability. The probability which has already occurred is in denominator, and the event whose probability has to be found out is in numerator. If you observe the definition of probability, it means you observe that the probability of F be considered as the sample space for the conditional probability, and numerator will be the intersection of E and F. देखिए, number of elementary events favorable to intersection, number of elementary event favorable to event F. Is this point clear? So this is the definitions you have to learn. E oblique F, कि कैसे हम लोग इस डेफिनेशंस को यूज़ करेंगे. ऑल द 12th क्लास का जो मेनली सिलेबस है आपका वो यही है. तो E oblique F में हम E इंटरसेक्शन F लेंगे, oblique F लेंगे. तो कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज. प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस oblique F, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है व्हेन द इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. मैं यहां से बात कर रहा हूं. एस oblique F, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एस व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड. यू नो इट इज एफ एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. एंड इफ यू गो विद द वेन डायग्राम्स, S इंटरसेक्शन F विल बी F बिकॉज ये आपका S होता है. और इज इट क्लियर? सैंपल स्पेस पूरा F, इसी के अंदर का कोई इवेंट होता है. तो S इंटरसेक्शन F ही आएगा विच इज 1. इवन एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन दिस. E कॉम्प्लीमेंट oblique F इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है. 1 मार्क्स क्वेश्चन है. As you know that S probability of S oblique F is 1, it mean probability of S आप लिख सकते हो E intersection E complement, sorry union.
oblique f is 1. It can be written as probability of E oblique f plus probability of E complement oblique f is equal to 1. So this is the results that you can take. आप यहाँ पे मेंशंस कर सकते हैं बिकॉज E and E complements are disjoint events because their intersection is empty. If I take property number 2, explanations, probability of A union B oblique F A यूनियन बी एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं. पहले तो आप यहां पे डेफिनेशन लिख लो. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. ऊपर डिसजॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो. ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ. सबके नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कर दो. A intersection f by the definition of conditional probability, it is written as A oblique f. This can be written as B oblique f. यहां से इस definitions. This can be written as probability of A intersection B oblique f. Because इस सारे को आप ये लिख सकते हैं probability of A intersection B intersection f. And if A and B are disjoint events, if A and B are disjoint events, implies A intersection B, probability of A intersection B is 0. This implies probability of A union B oblique f will be equal to probability of A oblique f plus probability of B oblique f. वो पार्ट 0 हो जाएगा. So these are the 3 properties and 3 1 marks questions. Questions are very simple. थोड़ा सा लेक्चर्स को पकड़ लेना कि भाई क्या है. अभी हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे. अभी मैं इन डेफिनेशंस को सम्स करते करते फिर एक्सप्लेन करूंगा. इन प्रॉपर्टीज की आप डेरिवेशंस कर लेना. एग्जाम्पल नंबर 1 आप यहां कर सकते हैं. Probability of A is given to be 7 by 13. And probability of B is 9 by 13.
and probability of C is means A intersection B, 4/13. Find the probability of A oblique B. Method is A intersection B upon probability of B. That is 4/13 divided by 9/13. Answer is 4/9. So this is the first examples. In exercise 13.1, question number 1, you may try of your own. Question number 2, let me take question number 3. 2 भी आप खुद करेंगे. I am taking question number 3. If probability of A is 0.8, probability of B is 0.5, probability of A intersection B is 0.32, no, it is given to be probability of B oblique A is 0.4. Find number 1 probability of A intersection B, number 2 A oblique B, number 3 A union B. देखिए फर्स्ट मैं बेसिकली यहां से काम करना शुरू करता हूं बी ओब्लिक ए से. यहां पे मैं ये लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, सॉरी बी ओब्लिक ए तो ए आएगा, इज 0.4. दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is 0.8 into 0.4, 0.32. ये फर्स्ट आ गया. सेकंड, probability of A oblique B is probability of A intersection B upon probability of B. अब A intersection B is 0.32, B is 0.5, तो 0.64 आ जाएगा. क्लियर. थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये अब 11th क्लास का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. 0.8, 0.5 माइनस 0.32, तो 1.3 माइनस 0.32. .98 is your answer. तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप इसी तरीके से कर लेंगे. तो पहले 5 क्वेश्चंस आप डेफिनेशन से रिलेटेड हैं. इस वीडियोस में जितने सम्स करने हैं मैं उनकी नंबरिंग लिख देता हूं. एक तो क्वेश्चन नंबर्स आप 1 to 5. आई एम टेकिंग एक्सरसाइज 13.1.
After that, I am taking question number 11. A fair die is rolled. So you may write the sample space for the fair dice. S ले सकते हैं. E is the events, odd numbers 1, 3 and 5. F is the event, 2 numbers 2 and 3. And G is the number 2, 3, 4 and 5. First, probability of E oblique F. देखिए माई वर्किंग इज बड़ी सिंपल है. आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 और 2. तो आप यहां लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. अब ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही कॉमन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में दो, तो आंसर 1/2 आएगा. Answer is 1/2. So this is E oblique F. क्लियर. अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ई. ई में कितने 3 एलिमेंट्स हैं और कॉमन कितने हैं, ओनली 1. तो आंसर 1/3 आएगा. वैसे इसके 2 मेथड्स होते हैं. मतलब यहां से मैं मेथड, एक तो मैंने आपको ये कह दिया ई ऑब्लिक एफ है, मीन्स ई के नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लीजिए और ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट ले लीजिए. या दूसरा तरीका इसमें यह होता है कि बच्चा ये लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. तो यहां से बच्चा फिर क्या लिखेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. अब ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन एलिमेंट उसको कितने नजर आ रहे हैं, 3/6. फिर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखेगा, फेवरेबल कितने नजर आ रहे हैं, 2/6. सॉरी, ई इंटरसेक्शन एफ में उसको 1 नजर आ रहा है और एफ में कितने नजर आ रहे हैं, दिस. और प्रोबेबिलिटी ई में कितने नजर आ रहे हैं, 3/6. इसलिए आंसर से वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएंगे. पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एफ में कि टोटल एलिमेंट गिन लीजिए, क्योंकि सेम सैंपल स्पेस में हम बात कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक जी, बिल्कुल ठीक है. जी और ई, जी में 4 एलिमेंट हैं और ई और जी में जो कॉमन है वो 2 हैं. तो 2/4, आंसर इज 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑब्लिक ई, ई में कितने एलिमेंट हैं, 3. और जी और ई में कॉमन कितने हैं, 2. तो आंसर इज 2/3. नेक्स्ट थर्ड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी. इसमें नंबर 2 वाला फार्मूला लग जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी. ई ऑब्लिक जी आप निकाल चुके हैं 1/2.
एफ ऑब्लिक जी भी 1/2 आएगा। देखो एफ और जी में कॉमन एलिमेंट 2 है और जी में 4 है, तो 2/4। ई और जी में कॉमन एलिमेंट्स 2 हैं और बाय जी इंटरसेक्शंस ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन एलिमेंट 1 है, दैट इज 3, और ई इंटरसेक्शन एफ और जी में कॉमन यहां पे लिख सकते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो इवेंट्स में, दैट इज 3। कॉमन विद जी इज 3, 1 आएगा, और जी में एलिमेंट 4 है। तो आंसर इज 1 - 1/4, आंसर इज 3/4। और एंड करके उसने ये भी पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऑब्लिक जी निकालो, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। वन बाय 4। देखो बड़ा ध्यान से बात है, सीधा फार्मूला लर्न करने की कोशिश करिए। ई और एफ में कॉमन एलिमेंट्स न्यूमरेटर में लिख लीजिए, और एफ में कितने एलिमेंट्स हैं वो नीचे लिख दो, आंसर आ जाएगा। मैंने तो जनरली आपको एक ही बात इसमें बताई है। क्वेश्चन नंबर 16 भी मैं इसी के साथ करूंगा। If probability of A is 1/2, probability of B 0, probability of A 1/2 है, probability of B 0 है, then probability of A oblique B naturally not defined आएगी, because आपको conditions पता है कि probability of F should not be equal to 0. तो in this case answer will be not defined. This is question number 16. Question number 17. If A and B are two events such that probability of A oblique B is equal to probability of B oblique A, अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि ये भी probability of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय probability of B होगा, probability of A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय probability of A होगा। तो दिस इंप्लाइज रिजल्ट्स क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इट मीन द रिजल्ट्स विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। वो 0 नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी होना पड़ेगा। ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी 0 है, इसलिए इसमें भी डी आपका होल्ड कर जाएगा, आंसर विल बी डी। तो इन दिस असाइनमेंट्स, इन दिस वीडियोस आई हैव डिस्कस ओनली फ्यू क्वेश्चंस Now I have covered the question on the basis of definitions. Now the questions related to the word problems will be there.